Hello friends, good morning, and today we will discuss the last part of the exercise, the measurement of central tendency. Earlier I have told you that there are the three topics in this exercise: mean, median and mode. And earlier we have done mean and median. And today we will discuss about the mode, and mode is denoted by Z. It's clear? Okay. Earlier we have seen that there were the four type of the formulas in mean, three type of the formulas in median, but in mode there is only one formula. उनमें अलग अलग तरीके के थे, स्टेप डिविएशन था, एज्यूम मीन, व्हाट्सओवर, लेकिन इसमें हम लोगों के पास में स्टैंडर्ड फार्मूला एक ही है. अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. लेकिन मोड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थ्री टाइप का प्रॉब्लम्स होता है. विच आर थ्री? सो लुक एट द स्क्रीन. फर्स्ट वन, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस एंड नंबर आर गिवन. दीज वन 2, 5, 7, 5, 3, 1, 5, 8, 7, 5. But frequency is not given. So how will we find the mode? Mode means a number which has the highest frequency. जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही मोड होता है, या वो नंबर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही मोड होता है. तो इन द गिवन टेबल या इन द गिवन नंबर्स we will observe carefully. Look at the screen please. So this is 5 one time, 2 time, 3 time and 4 time. There is only one number, that is the 5, that is repeating the 4 time. 5 एक ऐसा नंबर है जो बार बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है. It mean Z is equal to 5. This is your answer. It's clear? जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आए वही हमारे पास में मोड होता है. लेकिन यहाँ तो क्या है कि 7 से 8 नंबर गिवन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास में नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं. 30 नंबर्स हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया. देन हाउ विल वी फाइंड? देन वी विल फाइंड द सॉल्यूशंस एज वी हैव डन अर्लियर इन आवर जूनियर क्लासेज, लाइक इन 9th and 8th वी हैव यूज द टेलीमार्क सिस्टम्स. जानते हैं ना टेलीमार्क्स वाला कैसे? इसी का मैं एक बार आपको बता रहा हूं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए टेबल. हमको एक टेबल बनाना है और उसमें 3 कॉलम्स बनाने हैं. फर्स्ट कॉलम बिलोंग्स टू एक्स, सेकंड बिलोंग्स टू टेलीमार्क्स एंड थर्ड वन बिलोंग्स टू फ्रीक्वेंसी. In first one, the value of the x, in second one, telemarks, and in third one, frequency. So how will? So first of all in x, we have to mention all the numbers which are given. But whenever a number is repeating, so we have no need to write it repeating again and again. उसको बार बार लिखने का जरूरत नहीं है. Only one time. How? So which is the smallest number? First of all, 1, 2, 3, 5, 7 and 8. So these numbers are given in this table. Only 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbers are given, but few numbers are repeating. So first of all observe, this is the 2. So we just draw a single telemark in just front of 2. जो नंबर हम यहाँ से मेंशन करेंगे उसके सामने हम लोगों को एक टेलीमार्क ड्रॉन करना है. क्लियर? Second one is 5, so in front of 5. Next is 7, in front of 7. Again 5, in front of 5. Again 3, so in front of 3. Now 1, so this is 1. Again 5, so in front of 5. Next is 8. Next is 7, and finally this is the 5. Okay. So we have mentioned all the telemarks in front of the variables. Now we will count and mention in frequency. There is only one telemarks, mean the frequency of 1 is 1. The telemarks of 2 is 1, so frequency of 2 is also 1. The telemarks of 3 is 1, so
frequency of 3 is also 1, but 5 has the 4 telemarks, so that's way its frequency is 4, and 7 has 2 telemarks, so its frequency will be 2, and 8 has only 1, that's way its frequency is 1. So which is the highest frequency? So highest frequency is 4. And what is the corresponding value of the variable of the 4? 5. इसके सामने वाला वैल्यू. So that's way z is equal to 5. ये नहीं लिखना कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है. जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो 4 फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज़्यादा किसका है? 5 का. So what is the mode? Mode will be 5. Clear? This is the first way. This is the second one. In second one, x and f given. f mean frequency, but x is ungrouped. यहाँ ungrouped है, तो अनग्रुप वाले में भी हम लोगों को कुछ नहीं करना है, कोई फार्मूला यूज नहीं करना है. वी विल ऑब्जर्व द फ्रीक्वेंसी टेबल केयरफुली. विच इज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी? दिस इज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज नोन एज मॉडल क्लास. इट्स अ क्लियर? ओके. सो हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 6 and corresponding value of the 6 is 5. So that's way mode is 5. ये 6 नहीं होगा, इसके सामने वाला x का वैल्यू लेना है, f का वैल्यू नहीं लेना है. तो these first two type of the problems, first type and second type, these questions arise in section A. ये section A में आता है जो 1 marks का क्वेश्चन होता है. लेकिन जो section D है उसमें क्वेश्चन नंबर 30 है. उस 30 नंबर वाले क्वेश्चन पे जो प्रॉब्लम्स आती है वो थर्ड टाइप की, जिसमें क्लास दिया हुआ होता है, फ्रीक्वेंसी दिया और ये कैसा होता है? ग्रुप वाला. इट वॉज द अनग्रुप. देन हाउ विल वी सॉल्व दिस वन? सो लुक योर स्क्रीन. So first of all we will discuss about the formula. What is the formula, friends? The formula of mode is z is equal to L plus f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into h. Now we should know what you mean by Ln, f1, f0, h. What are these? So first of all in the question we have to find the modal class. सबसे पहले मॉडल क्लास निकालना है. अब मॉडल क्लास कौन सा है? जिसका सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है. सो विच इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 16. सो दिस इज नोन एज मॉडल क्लास. क्लियर? सो दिस इज नोन एज द मॉडल क्लास. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ द एल. व्हाट इज द एल? एल is known as the lower limit of modal class, and earlier we have done in the median में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मीडियन क्लास होती थी उसका जो लोअर लिमिट है उसको L से डिनोट करते थे. अब यहाँ मॉडल क्लास है तो मॉडल क्लास की जो लोअर लिमिट होगी उसको हम लोग L से डिनोट करेंगे. सो दिस इज द L. F1 means the frequency of modal class. F0 the frequency of just preceding of modal class. मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले ग्रुप का फ्रीक्वेंसी, preceding class. And F2 means the frequency of succeeding of modal class. मॉडल क्लास के succeeding यानी just बाद वाली की. And H mean the class size. What is the class size? इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है? 5 का. सो दैट्स वे दिस इज द क्लास साइड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज वेरिएबल्स. सबसे पहले इनका वैल्यू पुट करना है. कैसे? L इज इक्वल टू 20, F1 इज इक्वल टू 16, F0 इज इक्वल टू 7, F2 इक्वल्स टू 12, and h equals to 5. Clear? Some people also call it F0, F0, FO. It doesn't matter.
Now put these values in our formula. So now L equals to L. What is the value of the L? 20 plus what is the value of the F1? 16 minus 7 upon 2 into 16 minus 7 minus 12 into 5. क्लियर? अभी हमने यहाँ कुछ भी स्पेशल नहीं किया है, सिर्फ ये अगर हम लोगों को ये वैल्यूज़ पता नहीं है, व्हाट यू मीन बाई F1, व्हाट यू मीन बाई F0, तो फिर हम लोग इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे. तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या है. एंड अर्लियर व्हाट आई टोल्ड यू इन द मीडियन दैट यू शुड सम ऑफ दिस डिजिट इन द लास्ट स्टेप. इसको सबसे लास्ट स्टेप में ले जा करके ऐड करना, पहले कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा. सो 20 प्लस 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9. 16 टू जा 32 माइनस 7 एंड माइनस 12 माइनस 19 इंटू 5. अब बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है. तो यहाँ माइनस के हैं दोनों डिजिट, तो पहले वो दोनों ऐड होंगी और फिर इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 29 32 माइनस 19 इज इक्वल टू 13 इंटू 5. 20 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 जब 45 अपॉन 13. नाउ 45 डिवाइडेड बाई 13. So this is 45 divided by 13. 13 3s are 39. Remaining 6. By putting the decimal we got the 0. 13 4s are 52. And remaining 8. And again we got the 0. 13 6s are 78. So we have to find only 2 digit after decimal. Decimal के बाद में 2 digit तक ही find करना है, उसे आगे नहीं जाना है. So 45 divided by 13 we get 3.46. And finally now we should add 20 in this digit. अब यहाँ इसको ऐड करना है, तो 20 plus 3 23.46. So this is your value of mode. It's a clear? Once again I am repeating it. सबसे पहले आपको ये टेबल गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास. सबसे पहले हम लोगों को मॉडल क्लास निकालना है. अब मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स, जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है वही मॉडल क्लास है. तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 16. सो दिस इज द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास के बाद में हम लोगों को इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. एल मीन द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. F1 means the frequency of model class. F0 means the frequency of the preceding class of model class, and F2 means the frequency of succeeding class of model class. After all, we will put the values in formula and there is a simple calculation. But one thing that we should be very carefully, that is ये जो इसका लोअर लिमिट है इसको हम लोगों को लास्ट स्टेप में जाकर के ऐड करना है. इट्स अ क्लियर? तो इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में हमारे पास में 3 टॉपिक थे, मीन, मीडियन एंड मोड. एंड वी हैव डन ऑल 3 टॉपिक्स एंड इन द वेरियस फार्मूलाज विच बिलोंग्स टू योर सिलेबस. दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास.